سب سے پہلے مجھے بات کہنا ہے، سب سے مبارک نکاح جو اس دنیا میں ہوا وہ سب سے مبارک اور سب سے بہترین نکاح وہ کن کا نکاح تھا؟ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف نبی کی بیٹی بولو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بہت پیارا نکاح، بہت سادہ نکاح، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا نکاح۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب نکاح ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر بن گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کی بیوی بن گئی، اس وقت ہمارے نبی گھر میں تشریف لائے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم لے کر آئے آپ کے لیے قاری احمد علی کا بیان۔ بہت ہی زبردست بیان ہے دوستو، ایک بار ضرور سنیں۔ تو چلتے ہیں بیان کی طرف۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹھایا۔ ظاہری بات ہے ہمارے نبی ابا تھے، بیٹی کو الوداع کرنا تھا۔ ہر ابا جب اپنی بیٹی کو الوداع کرتا ہے تو آنکھیں بھری ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا سننا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ ہمارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا، علی تم میرے بیٹے کی طرح ہو، میں نبی ہوں، میں تمہارے ابا کی طرح ہوں، لیکن علی ایک بات کا خیال کرنا، اگر میری بیٹی فاطمہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دے، میری بیٹی فاطمہ سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کتنا پیارا، کیونکہ میری بیٹی فاطمہ کو ابا کی تربیت ملی ہے، اماں کی تربیت نہیں ملی ہے۔ حضرت فاطمہ تو 6 سال کی تھی جب ان کی اماں اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کو ابا کی تربیت ملی ہے۔ حالانکہ آپ سوچیں ہمارے نبی کی تربیت نہیں، نظر کرم پر اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں، لیکن ہمارے نبی کہہ رہے علی ان کو ابا کی تربیت ملی ہے، اماں کی تربیت نہیں ملی، اگر میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ پھر ہمارے نبی ایسے متوجہ ہوئے اور اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی فاطمہ آج تک تمہیں محمد کی بیٹی کہا جاتا تھا، آج تک تمہیں نبی کی بیٹی کہا جاتا تھا، آج تک ٹائٹل نمبر 1 یہ تھا کہ تم محمد کی بیٹی ہو، اب آج سے تمہارا ٹائٹل نمبر 1 ہو گیا، تم علی کی بیوی ہو۔ بے شک تم محمد کی بیٹی ہو، مگر وہ اب ٹائٹل ہو گیا نمبر 2 پہ، نمبر 1 پر تم علی کی بیوی ہو گئی ہو۔ اور پھر ہمارے نبی نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی فاطمہ علی غریب ہے، علی مسکین ہے، ان کے پاس زیادہ لمبا چوڑا گھر کاروبار نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسی چیز کبھی مت مانگنا کہ جس سے علی کو تکلیف ہو جائے۔ اپنی زندگی میں اس کا خیال کرنا، اپنے شوہر کا حق ادا کرنا، اور کبھی ایسی چیز مت مانگنا جس سے حضرت علی کو تکلیف ہو جائے۔ میرے پیاروں، آج سب سے زیادہ پریشانی دلہا دلہن کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا دونوں کے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ہماری بیٹی نے ایک فون کر دیا کہ مجھے میری ساس سے یہ تکلیف ہوئی، یا میرے شوہر سے یہ تکلیف ہوئی، میری دیرانی سے تکلیف ہوئی، میری جیٹھانی سے تکلیف ہوئی، ہمارے یہاں ایک لڑائی جھگڑا اختلاف، اور وہ اختلاف اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ طلاق تک کی نوبتیں آ جاتی ہے۔ کاش ہم ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کا کیسے اپنے داماد کو سمجھانا، کیسے اپنی بیٹی کو سمجھانا، یہ اسوہ اگر ہمارے پاس ہو تو ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل ہسبینڈ وائف میں، میاں بیوی میں جو لڑائی جھگڑے طلاق اختلافات، میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر ہم بھیک مانگتے ہیں، اس سے بہت احتراز کریں۔ اب یہ نہ سمجھے آج کل کے ہمارے دلہے کیا سمجھتے ہیں، میں مرد ہوں نا، اللہ نے مجھے طلاق کا پرمیشن دیا ہے نا، میں جب چاہوں گا طلاق دے دوں گا، میرا کیا جائے گا، مجھے اور کوئی لڑکی مل جائے گی، اور کوئی عورت مل جائے گی۔ ہم یہ نہیں سوچتے میرے پیاروں، جس عورت کا ہم نے مذاق اڑایا ہے، جس عورت کو ہم نے ڈانٹا ہے، میرے پیاروں اگر اس کی ایک بد دعا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مظلومہ یا مظلوم جب بد دعا کرتا ہے
اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، میرے دوستو ہم برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے کہوں گا کوئی کمال نہیں ہے، جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی جن کا نام حضرت انجشا، بولو کیا نام؟ حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ بیوی کا معاملہ ہوا، حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو مارا۔ حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اپنی بیوی کو مارا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور ہمارے نبی نے فرمایا اضربت امرأتک، تم نے اپنی بیوی کو مارا۔ تو حضرت انجشا نے کہا اللہ کے رسول تھوڑا غصہ آ گیا تو میں نے اپنی بیوی کو مارا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رویدۃ القواریر، ہمارے نبی نے فرمایا یہ کیا معاملہ، کانچ کی بوتل کو توڑ دیا، کانچ کے گلاس کو توڑ دیا، کون سی بہادری کا کام ہے؟ اور ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، ہمارے نبی نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑے، گالی دے، ماں بہن کی گالی دے۔ ارے مالیگاؤں والو، ہمارے نبی نے فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے ہوئے۔ اس لیے سب سے پہلے جو مجھے آپ تمام سے کہنا ہے، کیونکہ 1000 الحمدللہ 16 سالوں میں 1000 نکاح مکمل ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ 2000 گھر آباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے اس میں جس طرح محنت کی ہے، اللہ سب کو اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن میں تمام دلہوں سے کہوں گا، یہ 40 دلہے جو اس وقت سامنے موجود ہیں، ان سے کہوں گا بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر غصے کے وقت کنٹرول کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا، کتنے پیار سے فرمایا غلطی ہو گئی نا، ارے ہو گئی، بیوی کی غلطی ہو گئی، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی عورت ہے، وہ بھی ناقصۃ العقل ہے، غلطی ہو گئی۔ ہمارے نبی فرماتے معاف کر دے، اللہ قیامت میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے پیاروں سب سے پہلا کام اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری بات، یہ نکاح کا جو پروگرام ہوتا ہے، نکاح کا پروگرام ہوتا ہے، 1000 مکمل نکاح ہو گئے، ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے سپاس نامہ دیا۔ میں تو صحیح معنی میں اس کا کوئی حق نہیں رکھتا ہوں سپاس نامے کا، میں اس پر آؤں گا کہ یہ حق کون رکھتے، اس پر میں آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات بتاؤں، نکاح اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی سنت ہے، جیسے ہمارے بیٹے حضرت مفتی عفیف صاحب نے فرمایا کہ نکاح عبادت ہے، ہر عبادت محدود ہے۔ اب نماز شروع کرے 10-15 منٹ میں ختم ہو جائے، روزہ مہینے میں ختم ہو جائے، حج کے موسم میں ختم ہو جائے، زکوٰۃ ایک مرتبہ دے کر ختم ہو جائے۔ نکاح وہ عبادت ہے جو بہت طویل عبادت ہے۔ میرے پیارو، نکاح اول عبادت ہے، بولو نکاح اول عبادت ہے۔ یہ دنیا قائم ہوئی، یہ دنیا قائم ہوئی، سب سے پہلے اگر کوئی عبادت آئی تو کون سی عبادت آئی؟ ارے بولو نا، کون سی عبادت آئی؟ نکاح، نکاح عبادت آئی، کیونکہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ جنت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں نکاح ہونا ہے۔ معلوم ہوا کائنات میں سب سے پہلی عبادت کون سی آئی ہے؟ نکاح۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے شوہر بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو زوجہ یعنی بیوی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زوج شوہر بنایا، حضرت حوا کو زوجہ بنایا۔ معلوم ہوا کائنات میں سب سے پہلی عبادت کون سی ہے؟ ارے بولو نا، کون سی ہے؟ نکاح۔ اور آخری عبادت کیا ہے کائنات کی؟ ہم جنت میں جائیں گے نا؟ ارے اب تو ہاں بولو، یہ بھی کوئی مشکل سوال پوچھا میں نے؟ بھائی جائیں گے نا جنت میں انشاءاللہ؟ بولو بولو، ہاتھ اٹھا کر کے بولو جائیں گے جنت میں۔ اچھا ہم جنت میں گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، خاص کر کے ہماری یہ 40 دلہے سوچو، ہم جنت میں گئے، جنت میں جا کر اللہ ہم کو کہیں گے چلو فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو۔ بھائی جنت میں نماز نہیں۔ اچھا جنت میں ایسا کہا جائے گا بھائی چلو بھائی یہاں غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور ہے، زکوٰۃ دو؟ جنت میں زکوٰۃ نہیں، جنت میں کوئی عبادت نہیں۔ ہاں لیکن ایک چیز جنت میں ہوگی، یہ تو سب کیسے کرسی پر 3-3 گھنٹے سے بیٹھے ہیں جنت میں، اور سارے مرد پلنگ پر لیٹے ہوں گے، مسہری پر،
اور وہ مسیریا بھی جنت کی ہوگی. کیسی ہوگی اللہ کو معلوم ہے. ہم لیٹے ہوں گے اور اعلان ہوگا. ہاں ہم سب ہوں گے, مولانا بھی ہوں گے, بڑے خوش ہوں گے, ماشاءاللہ میں بھی رہوں گا. ہم سب ایسے لیٹے بیٹھے ہوں گے اور ان کو خبر ملے گی, او قاری احمد علی کیا ہوا, نکاح ہونے والا ہے. تو نکاح ہونے والا, دنیا میں نکاح ہونے والا, دیکھو کیسے پھول پھول پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. چاہے کتنی بھی گرمی لگے مگر اترنے والا نہیں. تو جیسے ہم کو بھی قیامت میں خبر ملے گی نا, او بندہ جنت میں آ گیا, تیرا نکاح ہونے والا, تو جلدی سے اٹھے گا. اللہ کا یہ اس کو اٹھے نہیں, وہ لیٹا رہے گا, حوریں آتی جائے گی اور اللہ فرماتے میں نکاح پڑھاتا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ اللہ. نے فرمایا متقین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے جنتی دلہے اپنی اپنی مسیریوں پر لیٹے ہوں گے, حوروں پہ حوریں آتی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح پڑھاتے جائیں گے. تو کائنات کا سب سے پہلا عمل نکاح, اور کائنات کا آخری عمل بھی نکاح. اس لیے ہاں ہمارے مہمان آئے ہیں مفتی عفیف صاحب, یہ گھر میں جا کے بیوی کو مت سنانا. آپ تو انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں, مہمان ہمارے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ورنہ بیوی کو یہ سناتے تو کہتے اچھا تم وہاں پہ حور کے ساتھ نکاح کرو گے تو میرا کیا ہوگا. تو میں نے کہا اتنا سنبھالا نا, یہاں کم تکلیفیں اٹھائی ہم نے. خیر میرے پیاروں, اس وقت ایک بہت پتے کی بات پر آپ پر آ رہا ہوں کہ نکاح ہوتے ہیں, ایک بات کو سمجھ کر چلے, مسلم بات ہے, اگر میاں بیوی اگر صحیح ہے, شریعت پر ہے, انشاءاللہ ہماری آنے والی اولاد بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. کیا بات ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھا, اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل. امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ اگر لکڑی کو سیدھا رکھو تو اس کا جو شیڈو ہوگا, سایہ, وہ بھی کیسا ہوگا, سیدھا. اور اگر لکڑی کو آپ نے ٹیڑھی کر دیا تو شیڈو کیسا ہوگا, ٹیڑھا. اس لیے میرے پیاروں, ہم صرف نکاح کو ایک نکاح نہ سمجھے کہ بیوی کے ساتھ رہنا ہے, یہ سمجھے آگے اللہ اولاد دیں گے. بولو انشاءاللہ. ان اولاد کو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے, ان اولاد کو ہمیں دین کا علم دینا ہے, ان اولاد کو دنیا کا علم دینا ہے. جہاں ہمیں انہیں پیار دینا ہے, محبت دینا ہے, وہاں ان کو اخلاق بھی دینا ہے. ابھی سے میاں بیوی آپس میں یہ طے کرے کہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا, جو میاں بیوی طے کر لے کہ اگر تو کوئی غلطی شریعت کے مطابق کرے میں تجھے بتاؤں گا, میں کچھ کروں تو مجھے بتا دینا. اور یہ بتانا اچھا ہے کہ نہیں, اچھا. شریعت کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے, ایک مرتبہ حضور پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقام کس کا ہوگا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, اب ٹینشن ہوگا, بہت ٹینشن تھا. ہمارے نبی گھر میں آئے, سلام نہیں کیا. بولو سلام نہیں کیا, چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی, اور ہمارے نبی آ کر بیٹھ گئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہماری اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئی, کہا میرے نبی کیا ہو گیا, ماں بالوں کا, میرے نبی آپ کو کیا ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہیں ہوا, بس وہی دعوت تبلیغ کا کام کر کے آ رہا ہوں. کہا میرے پیارے نبی آج آپ نے سلام بھی نہیں کیا, اب گھر میں آئے تو آپ نے سلام نہیں کیا, اور آپ جب گھر میں آتے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے, آج آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں ہے. میرے دوستوں ہم ہوتے نا اس جگہ پر, ہاں ہو جائے گا بعد میں سلام کروں گا, یا کیا کہتے ہیں, ہاں ٹینشن میں ہو, کائے کا ہنسنے کا. میرے دوستوں ہمارے نبی خود کھڑے ہو گئے, گھر کے باہر گئے, پھر گھر میں آئے, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, اور مسکراتے ہوئے آئے اور کہا خدیجہ اللہ تجھے جزائے خیر دے, ایک بہت بڑی نیکی مجھ سے چھوٹ گئی تھی, تو نے محبت کے ساتھ وہ نیکی کرنے کا مجھے موقع عطا فرما دیا. میرے پیارو, جب میاں بیوی کا معاملہ ایسا شریعت والا ہوگا انشاءاللہ ہماری اولاد بھی بہت پیاری ہوگی. اور خود آپ سوچیں نا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اولاد کے بارے میں ہم کو نہیں فرمایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا حضرت ام سلمہ, کن کے ساتھ ہوا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا. اس وقت حضرت ام سلمہ ایک بچہ لے کر آئی, بچے کا نام ہے عمر. بولو بچے کا نام ہے عمر. اب ہوا کیا,
जो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रखा हुआ है और वो बच्चा भी बाजू में बैठा है, नाम क्या है? अमर नाम है, छोटा बच्चा है, 6-7 साल का बच्चा है, वो बैठा हुआ है। अब सामने खाना आया, अब जैसा खाना खाना शुरू किया तो बच्चा बच्चा होता है, उन्होंने कभी प्लेट में इधर हाथ रखा, कभी प्लेट में उधर हाथ रखा, कभी प्लेट में इधर हाथ रखा, कभी सीधा हाथ रखा, कभी उल्टा हाथ रखा। मेरे दोस्तों, हमारे नबी की तरबियत का अंदाज, हमारे नबी ने डांटा नहीं, हमारे नबी गुस्से नहीं हुए, बल्कि हमारे नबी ने 3 बातें कही, सर पर हाथ रखा, कहा या आम्र समिल्लाह, ए आम्र खाना शुरू करे तो बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह, बोलो बिस्मिल्लाहि वाला। फिर हमारे नबी ने फरमाया वकुल मिम्मा यलीका, करीब करीब से खाओ, पूरे प्लेट में हाथ घुमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो खाना इधर है वही खाना उधर है। और फिर फरमाया वकुल भी यमीनिका, अपने दाएं हाथ से खाओ। हजरत आमर फरमाते हैं कि वो 3 बातें मेरे दिमाग में ऐसी जम गई कि जब मैं खाने बैठता था मुझे मेरे नबी के तीनों फरमान याद आया करते थे। तो अम्मा अब्बा, आपको मालूम है एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते दिए, हम लोग बहुत करते, खास करके हम लोग जिनके बच्चे या पोते या पोतिया नवासे नवासिया ये गुनाह हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? अब बच्चा हमारा दूर चला गया या पोता पोती नवासा नवासी हमसे दूर चले गए, तो हम क्या करते हैं मालूम है? अपने हाथ को बंद करेंगे, देख मैं तेरे लिए कुछ लाया हूं, आजा आजा आजा, आई हैव ब्रॉट फ्रॉम यू, दिस इज योर प्रेजेंट, कम हियर कम हियर कम हियर। हालांकि हमारे हाथ में कुछ होता। एक मरतबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गली से गुजर रहे थे, एक औरत ने ऐसी मुट्ठी को बंद किया था और अपने बच्चे को कह रही थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चा आ जाओ, ताल ताल ओती का, ताल ओती का, ए बच्चा इधर आ जाओ, मैं तुमको देने वाली हूँ, मैं तुमको बहुत अच्छी चीज देने वाली हूँ, आ जाओ। अब वो बच्चा आए ना आए, हमारे नबी उस औरत के पास आए, कहा तुम्हारे हाथ में बच्चे को देने के लिए है? कहा कि हाँ है। मुट्ठी खोली तो खजूर है। कहा वो बच्चा आएगा तो मैं उसको खजूर दूंगी। हमारे नबी ने फरमाया अच्छा है तुम्हारे हाथ में खजूर है और तुम देने वाली हो, अगर खजूर न होता, ऐसा ही धोखा देकर तुम अपने बच्चे को बुलाती, ये झूठ होता और कयामत में इसका जवाब देना पड़ता, ये झूठ होता और कयामत में इसका जवाब देना पड़ता। इसलिए मैं आपसे कहूँगा मेरे प्यारो, शादियाँ होती है, औलादों का भी सोचना होता है, उनकी तरबियत का सोचना है। आज हमारे जवान, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, हमारे ये मोबाइल की दुनिया, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये तंबाकू, ये गुटखा, ये मोबाइल, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये स्टेटस, मेरे प्यारो, अभी मैं एक बात कर रहा हूँ, हमारे हजरत शेख सुलेमान मोगलिया, मेरे शेख फ्रांस में रहते, फ्रांस में। अब मैं कैसे फ्रांस पहुंचा, कैसे उनके हाथ पर बैयत हो गया, वो एक बहुत लंबा चौड़ा वाकया है। सिर्फ इतना बताऊं, आप दुआ करें अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत बड़े आलिम रब्बानी कहो, फैज़ सुबहानी कहो, बल्कि अपने जमाने के कुतुब कहो, जो मेरे शेख है हजरत शेख सुलेमान मोगलिया दामत बरकातुहुम, इतना इतना अजब मामला, इतनी अजीब बात उन्होंने बताई। उन्होंने फरमाया हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के गले पर छुरी रखी, बोलो रखी नहीं रखी? रखी। अज़्म मुसम्मम के बेटे को ज़बा करना है, बोलो बेटे को ज़बा। उन्होंने कहा हम में से कौन है जो अपने बेटे के गले पे छुरी रखे? हजरत इब्राहिम ने किया। वो अलग बात है कि अल्लाह ने जन्नत का दुम्बा भेजा, वरना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने इरादे में पक्के थे कि मुझे अपने बेटे के गले पर छुरी चलाना है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। मेरे शेख हजरत शेख सुलेमान मोगलिया दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। फरमाया कौन है जो अपने बेटे के गले पे छुरी रखे? जाहिर बात है पूरा मजमा कहेगा हम में से कोई अपने बेटे के गले पे छुरी नहीं रख सकता। कहा नहीं रख सकते, एक काम तो कर सकते हो। कहा क्या काम? कहा आपका जो मोबाइल का गलत फॉर्मेट है, आपके मोबाइल का जो गलत फॉर्मेट है उस पे छुरी रख के डिलीट करो। अगर इब्राहिम अपने बेटे के गले पे छुरी रखते गए, अल्लाह खलीलुल्लाह बनाते गए। आज के जमाने में मोबाइल के गलत फॉर्मेट को डिलीट कर लो, अल्लाह तुम्हें भी खलीलुल्लाह बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। प्यारो, लेकिन और हजरत ही फरमाते हैं मौत और हमारी गफलत, आज ये कितने बैठे हैं, ये मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, यहाँ बहुत बड़ा मजमा बैठा है जिन्होंने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी है। यहाँ आए, निकाह में आए, शादी में आए,
कारी अनवर को हमें सुनना है, हमें समूह लगन देखना है, हमें ग्रुप वेडिंग देखना है, हमें कारी अहमद अली का बयान सुनना है। क़यामत में अल्लाह एक भी मर्तबा नहीं पूछेगा कि तूने कारी अहमद अली का बयान सुना था या नहीं सुना था, लेकिन सबसे पहले अल्लाह क़यामत में ये पूछेंगे मेरा बंदा नमाज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। समझ लो मेरे दोस्तों, मौत से मेरे शेख हजरत शेख सुलेमान मुगलिया दामत बरकातुम फरमाते, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, मौत से खतरनाक चीज है गफलत, क्योंकि मौत आएगी जिंदगी खत्म हो जाएगी, गफलत आएगी तो अल्लाह जल्ल जलालू हमसे दूर हो जाएंगे, अल्लाह की मारिफत हमसे दूर हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारों, एक तो मियाँ बीवी के साथ सुलूक अच्छा करना, अपने आने वाले बच्चों की सही तरबियत करना। और एक बात और बता दूं, जो खास तौर पर सब घरों में ये प्रॉब्लम आता है, शादी के बाद माँ की अहमियत घर में कम हो जाती है। माँ की अहमियत, ए मेरे प्यारों, माँ माँ है, शादी हो जाए हमारी फिर भी हमारी माँ, बोलो माँ है, शादी न हो तब भी वो हमारी, मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूँ मेरे प्यारों, माँ की दुआ से कहाँ आदमी जाता है और बद्दुआ से कहाँ गिरता है। और ऐसे नहीं, मैं दो बुजुर्गों के वाक़यात बयान करता हूँ आपके सामने, आप सिर्फ तवज्जो से सुनना। आपने नाम सुना होगा हजरत बायजीद बुस्तामी, बोलो नाम सुना नहीं सुना? माँ बेचारी बीमार है और माँ ने रात को बिस्तर पर कहा होगा ईशा की नमाज के बाद, बेटा बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला देना बेटा, ओ बेटा बायजीद जरा मुझे पानी पिला देना, बहुत प्यास लगी है। वो बेटा उस वक्त गए और जाकर ठंडा ठंडा पानी लेकर आए, लेकिन लेकर आए तो माँ की तो आंख लग गई और माँ सो गई है। वो बेटा बायजीद बुस्तामी, वो ठंडी का मौसम, चिलचिलाती ठंडी, वो पानी का कटोरा लेकर खड़े माँ सोइए, बिल्कुल तहज्जुद का आखिरी वक्त होता है, माँ की आंख खुलती है तो माँ कहती है कि बेटा सामने क्यों खड़े हो, ये कटोरे में क्या लेकर खड़े हो? तो कहा अम्मा आपने पानी मंगवाया था। हाँ पानी मंगवाया था, तो पानी मुझे जगा के पिला देते। कहा माँ कई रातें खड़ा हो जाता, लेकिन आपको मैं तकलीफ नहीं दे सकता, उस वक्त से मैं पानी लेकर खड़ा हूँ। माँ आप पानी पी लोगी, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। उस वक्त माँ की जुबान मुबारक से निकलता है, बेटा जा, तुझे कोई मिले न मिले, आज ये माँ दुआ देती है, तुझे पैदा करने वाला अल्लाह मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, बायजीद बुस्तामी अपने जमाने के इतने बड़े आलिम रब्बानी, इतने बड़े आलिम रब्बानी कि सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊं कि हजरत बायजीद बुस्तामी जब एक मर्तबा तकरीर करने आए, मालूम नहीं कितना लंबा मजमा था, और ऐलान हो गया बायजीद बुस्तामी किसी की मुलाकात नहीं करेंगे। भाई इतना बड़ा मजमा है, एक आदमी कैसे मुलाकात करे? ऐलान हो गया कि बायजीद बुस्तामी किसी की मुलाकात नहीं करेंगे। एक जवान बेचारा बहुत लंबा सफर करके आए थे और सिर्फ इसलिए आए थे कि अल्लाह मुझे बायजीद बुस्तामी की मुलाकात करना है, मैं इनको बहुत सुनता हूँ, इनको बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन ऐलान हो गया कोई बायजीद बुस्तामी की मुलाकात ना करे। उस जमाने में घोड़ा गाड़ी तैयार होती थी, सवारी तैयार है, बायजीद बुस्तामी सीधे बैठ जाएंगे। अब बायजीद बुस्तामी चलने लगे, मजमा पूरा छटता गया। वो जवान जो बेचारा आया था वो अल्लाह को कहने लगा, अल्लाह मुलाकात तो नहीं हो सकती, कम से कम अल्लाह मुझे उनका चेहरा तो बता दे। खैर वो जवान दौड़ता दौड़ता वो सवारी के पास पहुंच गया, बायजीद बुस्तामी को गौर से देखा, मुलाकात करने की हिम्मत नहीं थी। मेरे दोस्तों, लिखा है, किताबों में लिखा है कि जवान का जब इंतकाल होता है, जवान का इंतकाल होता है, किसी के ख्वाब में वो जवान आते हैं, कहते हैं अल्लाह ने मेरी मगफिरत कर दी। कहा क्यों मगफिरत कर दी? कहा अल्लाह ने फरमाया तूने मेरे एक वली को मोहब्बत से देखा था, आज तू कब्र में आया मेरा बंदा, मैं भी तुझे मोहब्बत से देखने वाला हूं। मेरे प्यारों, वो हजरत बायजीद बुस्तामी की शान जो हुई है कि उनको देखने पर अल्लाह मगफिरत के फैसले फरमाए, वो किसकी दुआ थी? वरना आलिम तो बहुत है, हाफिज भी बहुत है, कारी भी बहुत है, मुकर्रिर भी बहुत है, लेकिन माँ की खिदमत जो चमकाती है वो कोई नहीं चमका सकता। और आप सबको ताज्जुब होगा, एक तफसीर की किताब है अरबी ज़ुबान में, बहुत बेहतरीन तफसीर है, जिस तफसीर का नाम है तफसीर कश्शाफ, तफसीर कश्शाफ। और लिखने वाले इतने ज़बरदस्त आलिम है अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह। अगर आप पढ़े ना उस तफसीर को, इतनी हार्ड अरबी और फसाहत और बलागत और तलाकत और सलासत, यहाँ तक कि क़िरात सबा में अगर कोई मालिकी यौमिद्दीन पढ़ता है, कोई मलिकी यौमिद्दीन पढ़ता है, तो मालिक में क्या फ़र्क हो गया, मलिक में क्या तर्जुमा हो गया। वो इतने बड़े आलिम
मगर वो जो अल्लामा ज़मख़शरी थे ना, वो पाँव से लंगड़े थे, एक पाँव नहीं था। और उसकी वजह क्या हुई थी? वजह ये हुई थी कि जब ये बचपन में थे, 9-10 साल के थे, तो कोई चिड़िया विड़िया थी, उसके पाँव को रस्सी से बांधा, और वो रस्सी लंबी थी, अब वो चिड़िया को उड़ाते थे, रस्सी को पकड़े हुए थे, वो चिड़िया चली गई छत पर तो रस्सी लटक रही थी। ये अल्लामा ज़मख़शरी की उम्र 9-10 साल की थी, इन्होंने वो चिड़िया की रस्सी को खींचना शुरू किया। इतने में माँ आ गई। माँ ने कहा बेटा बेटा नहीं नहीं, अब वो रस्सी को खींचना नहीं, वो चिड़िया है, उसका पाँव टूट जाएगा। इन्होंने माँ की बात को नहीं माना और जोर से रस्सी को खींचा, वो चिड़िया का पाँव टूट गया। माँ ने कहा बेटा तूने चिड़िया के पाँव को तोड़ा, तू भी लंगड़ा हो जाएगा। कहते हैं अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते मेरी माँ का तो इंतकाल हो गया, मैं तो हदीस का सबक हासिल करने के लिए बुखारा की तरफ जा रहा था। बुखारा जा रहा था, मैं अपने ऊँट पर सवार था, अचानक मेरा ऊँट गिरा, मैं गिरा और मेरा एक पाँव टूट गया। उस वक्त जैसे गैब से आवाज़ आई, माँ ने जो बद्दुआ की थी वो मौत आने से पहले मुकम्मल हो जाती है। मेरे प्यारों, अपनी माँ को देखो, शादी हो जाए फिर भी माँ हमारी माँ है, माँ के कदमों के नीचे उस वक्त भी जन्नत है, और शादी होने के बाद हमारी बीवी बीवी है, लेकिन वही माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए अपनी माँ की आवाज़ के ऊपर आवाज़ मत उठाना। मुझे मालूम है घर में थोड़ा बहुत 19-20 होता है, उस वक्त सब्र और शुक्र के साथ काम कर लेना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये कुछ बातें बहुत ज़रूरी थी। मियाँ बीवी का ताल्लुक सही होना चाहिए, आने वाली औलाद हमारी सही होनी चाहिए, और मेरे प्यारों अम्मा और अब्बा का मुकम्मल एहतराम होना चाहिए। अगर माँ हमारे लिए, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो हमारे अब्बा जन्नत के दरवाज़ा है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। और एक बात तो ज़रूर कहूँगा पूरे मजमे को, मेरे को आज ऐसा लग रहा है, वो मेरे बेटे आज़ाद अनवर, आपने भी सही कहा, और हमारे जो ऐलान करने वाले, क्या नाम बेटा? इरशाद अंजुम, आपने मेरा दिल मोह लिया माशाअल्लाह। क्या आपकी ज़बान और क्या आपका फटाफट बोलना। आपकी शादी हो गई? हुई हाँ या नहीं? अरे बहुत ज़ोर ज़ोर से आप सबके पास बुलवाते थे, आप भी तो बोले। हो गई शादी? जी हज़रत जी। हो गई। तो उनको भी ऐसा सब अशार सुनाते? नहीं, वहाँ इजाजत नहीं होती। वहाँ इजाजत, वहाँ मेरा भी यही हाल है। मैं भी बाहर लंबे लंबे बयान करता हूँ। मुझे किसी ने कहा मौलाना बाहर 2-2 घंटे का बयान करता, घर में बयान? मैंने कहा घर में सुनता हूँ। बाहर और एक बात आपको बताओ, ये सारे ओ दुल्हे मियाँ सुनो, ये सब तकरीर अपनी जगह पर, लेकिन ये गांठ बांध के जाना कि बीवी का दिमाग थोड़ा तो गर्म रहेगा। पूछ लो, सबको पूछो यहाँ पे जितने बैठे हैं। थोड़ा वो मालूम है, एक मरतबा एक शख्स था, मौलाना आप तो मुफ्ती साहब माफ करना, कि एक मौलाना थे, अरे एक शख्स था, उसने अपनी बेटी का नाम मदीना रखा। क्या रखा? दीना। नाम अच्छा है जी। अरे हाँ बोलो ना, मदीना। नाम कितना प्यारा नाम है। अच्छा, वो बेटी का नाम मदीना रखा, बेटी के निकाह हो गए, 6 महीने के बाद अपने दामाद के पास गया, यानी अब्बा, मदीना का अब्बा अपने दामाद के पास गया 6 महीने के बाद, और जाकर कहने लगा मेरा बेटा और मेरे दामाद, तुम तो बहुत खुश होंगे, मैंने बड़ी खूबसूरत लड़की तुमको दी है, बड़ी खूबसूरत लड़की दी है, और नाम भी मदीना। बोलो नाम भी मदीना। वो ये 40 की तरह होगा उसका। एकदम उखड़ा उखड़ा था वो, कोई जवाब ही न दे। वो बार बार कहे अरे मैंने अपनी इतनी अच्छी बेटी तुम्हें दी है ना, और कितना अच्छा उसको दीन का भी इल्म है, दुनिया का भी इल्म है, एजुकेशन दिया। वो कोई जवाब ही न दे। फिर आखिर में कहा अरे मैंने इतनी अच्छी बेटी दी है, 6 महीने हो गए, नाम मदीना। अब वो दामाद से बर्दाश्त नहीं हुआ, यूं गर्दन उठाया, कहा हाँ नाम मदीना है मगर हकीकत में करबला है। मेरे को क्या लगता मालूम, यहाँ जितने बैठे हैं ना सबकी बीवी मदीना है, वहां जितने बैठे हैं सबकी बीवी करबला है। कोई वहां से जवाब देने को तैयार नहीं। वो आजाद अनवर और हमारे ये क्या नाम बेटा, इरशाद ने इतना कहा, वहां से आवाज नहीं आती। मेरा तो ऐसा लगा कहीं इद्दत में तो नहीं बैठ कोई यहाँ दाई तरफ से बोलने को तैयार नहीं। ये बेचारे सब बोले जा रहे, स्टेज पर सारे बोले जा रहे। उसी वक्त में समझ गया ये मदीना वाले वो करबला वाले। खैर अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे। इस वक्त बहुत ही गम के साथ, जहाँ खुशी है वहाँ गम है, और 4 बंदों का बहुत गम है। एक मेरे बहुत ही जाने जिगर हाजी रशीद शेखानी, जो हमारे हारिस के अब्बा है, 16 साल पहले उन्होंने ये काम हमें बताया था कि हमें मालेगांव में
ये ग्रुप वेडिंग करना है। और ये नहीं कहूँगा मैं कि हाजी रशीद शेखानी के मालेगांव पर हज़ारों एहसानात होंगे, उलमा पर हज़ारों एहसानात होंगे, लेकिन उस वक्त मेरे हालात भी बड़े अजीब व गरीब हालात थे। ये हाजी रशीद शेखानी, वो कहते हैं ना, दाएं हाथ से देना बाएं हाथ को भी पता न चले। हाजी रशीद शेखानी ने इतने एहसान मुझ पर किए, इतने एहसानात मुझ पर किए। आज वो हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम उनकी खबर में ये खबर पहुंची होगी कि हाजी रशीद आज 1000 समूह लगन मुकम्मल हुए और 2000 घरों को आबाद करने का सवाब तुम्हें मिलेगा। आज यकीनन अल्लाह ने उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया होगा, वो जन्नत का बाग होगा, अल्लाह ने और परवान चढ़ाया होगा। हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें, अल्लाह मरहूम की करवट करवट मगफिरत फरमाए। इसी तरह जो शुरू से कोशिश करने वाले हमारे बड़े आलिम रब्बानी मरहूम मौलाना अब्दुल बारी, उनको भी मैं कैसे भूलूंगा। वो भी बहुत ही हरकत वाले और मुस्तैद, और कितनी मर्तबा मुझे वो कभी इत्र का हदिया दे, कभी मेरे कंधे पर हाथ रखे, कारी साहब जज़ाकल्लाह। अरे वो उम्र में हमसे बड़े थे, इल्म में बड़े थे, तक़वे में बड़े थे, अमल से बड़े थे, लेकिन इन बड़ों ने हमें आजिज़ी और तवाज़ु सिखाया। अल्लाह ताला उन मरहूम की भी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। नंबर 3 यहाँ ऐलान करने वाले अनीस अंजुम, अनीस अंजुम, मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं बाकायदा उनके अशार को लेता था और अपने बयानों में उनका इस्तेमाल करता था। वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। और 30 साल से मेरे साथ चलने वाले मरहूम मौलाना उस्मान, जो पहली मर्तबा मालेगांव के समूह लगन में आए थे, वो भी कोरोना में अल्लाह को प्यारे हो गए। हम चारों बुजुर्गों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला करवट करवट उनकी मगफिरत फरमाए। नंबर 2 मुझे कहना ये कि ये जो 16 साल से 1000 जो ग्रुप वेडिंग हुई, इसका असल सिपासनामा खैर मेरे हाथ में दिया गया। ये अल्लाह हमारे कारी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, कारी जलील साहब, अल्लाह इनको बहुत अच्छा रखे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारा काम करने वाले कौन है। यूके में, बर्तानिया में, इंग्लैंड में, ब्लैकबर्न में एक बड़ा ट्रस्ट है। ट्रस्ट का नाम है फेज वेलफेयर एड, फेज वेलफेयर एड। और उस ट्रस्ट में जो सबसे बड़े जिम्मेदार है, जिनको कहो कि बानी मबानी आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी, मेरे भाई है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही दामत बरकातुम, जो अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव कई मरतबा आए हैं और कई मरतबा आपके सामने बातें भी उनकी हुई है। दूसरे नंबर पर है हजरत मौलाना शोएब पटेल साहब, वो भी कई मरतबा यहाँ मालेगांव तशरीफ लाए हैं और उन्होंने भी अपनी कीमती मवाइद से हमको यहाँ मुस्तफिज किया है। लेकिन आज अल्लाह का एहसान है कि उसी फेज वेलफेयर एड के जो तीसरे रुकने रकीन है, जो तीसरा पाया है, वो हमारे बेटे हजरत मुफ्ती अफीफ साहब दामत बरकातुहू में, जो पहली मर्तबा मालेगांव आए और कितने शानदार मौके पर आए, जहां 1000 पास हो रहा है, एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है। रिकॉर्ड कायम करने में अल्लाह ने बुलाया तो हमारे बेटे मुफ्ती अफीफ साहब को बुलाया है। तो ये हमारे मुफ्ती अफीफ साहब है ना, आपने इनका बयान सुना, ये असल में इंग्लिश में बयान करने वाले, ये इंग्लैंड के रहने वाले। इन्होंने तालीम हासिल की है अरबी पंजुम तक साउथ अफ्रीका में, फिर साउथ अफ्रीका से मिशकात और दौरा तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड। हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही के पास मिशकात की किताबें पढ़ी, दौरे हदीस की किताबें पढ़ी, फिर ये मुफ्ती बने और वहाँ के दारुल उलूम में पढ़ाया, फिर वहाँ के मस्जिद अनीसुल इस्लाम में पढ़ाया। और इस वक्त इंग्लैंड में एक बहुत खूबसूरत इलाका है स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के अंदर एक जगह है ग्लासगो। वहां ग्लासगो में 2 मस्जिद, मस्जिद इब्राहिम और मस्जिद उस्मान, दोनों के ये मुकर्रिर है, दोनों के जिम्मेदार है, दोनों के इमाम है, वहाँ के मुदर्रिस है। सेंट्रल मॉस्क एक मदरसा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते। और आपको ताज्जुब होगा कि ये हम तो खैर सफ़र करके आए, हम इंडिया वाले देसी लोग, ये चलता है। इन्होंने जो सफ़र किया ये ऐसे नहीं आए हैं, ये उम्रे में थे। बोलो दुआ करो अल्लाह इनके उम्रे को कबूल फरमाए। उम्रे के बाद ये सीधे, यानी ये अपनी अहलिया को यहाँ इंडिया में, इनकी अहलिया भी आई है, अहलिया मोहतरमा, वो भी बच्चों के साथ आई है। इन्होंने उनको अपने घर में छोड़ा, ये उम्रे से सीधे एयरपोर्ट पर उतरे, सूरत के एयरपोर्ट पर, यानी उम्रे से हैदराबाद, हैदराबाद से सूरत के एयरपोर्ट पर, सूरत के एयरपोर्ट पर आकर ही सीधे हमने इनको जहां आंखों का ऑपरेशन था, कैटरेक्ट ऑपरेशन, डायलिसिस था, वहां ले गए। उसके बाद में सूरत में जो ग्रुप वेडिंग था, समूह लगन था, वहां ले गए। अभी तो बेचारे इन्होंने सांस भी पूरा नहीं लिया, क्योंकि ये उम्रे में से मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद अक्सा से ये हमारे गुजरात सूरत में आए। सूरत में अभी तो मामला मुकम्मल हुआ नहीं,
कि हम इनको सीधे अजमेर ले गए। अजमेर में इन्होंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। वो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद हम इनको जयपुर ले गए, फिर जयपुर में इन्होंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया और फिर जयपुर से हम सीधे यहाँ मालेगांव लेकर आए। और मालेगांव आने में जो हमने तकलीफ उठाई है, यहाँ का पूरा रास्ता बचता है भाई, कितनी जगह तो रास्ता ही नहीं है। मुफ्ती आफीफ साहब कहने लगे जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा रास्ता देखा। मैंने कहा मालेगांव चलो, जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग भी दिखेंगे। मैंने कहा यहाँ तकलीफ उठाओ, वहां इतने मुबारक उलमा मिलेंगे। मैंने कहा ये रास्ता वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। मैंने मुफ्ती साहब को कहा एक बार मालेगांव आओ, आपका दिल चमक जाएगा। वहां डंडे थे, अब अंडे ही अंडे मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे हम मालेगांव में दाखिल हुए और मुफ्ती हफीज साहब ने सुबह सुबह में जो दुकानें देखी, और सुबह सुबह में यानी हमारा एंटर होने का टाइम मालेगांव में सुबह में 4:30 बजे का होगा। हमारे बेटे हारिस दरवाजा खोलने को भी तैयार नहीं था। खैर किसी तरीके से हम 4:30 बजे हम पहुंचे हैं, लेकिन देखा कहीं पराठा बन रहा है, कहीं जलेबी बन रही। मुफ्ती हफीज कहने लगे वाकईतन सारी तकलीफ भूल गया, इतना अच्छा अच्छा सुबह में कौन खिलाता पिलाता है। तो ये मालेगांव, मैंने कहा अभी तो आपने मालेगांव की झलक देखा है। मालेगांव बहुत प्यारा शहर है, बहुत मुबारक शहर है, उलमा का शहर है, मदारिस का शहर है। मैंने मुफ्ती हफीज साहब को कहा ये वो खुशनसीब शहर है कि आप कई जगहों में जाओगे, वहां साल में एक मर्तबा बुखारी मुकम्मल मिलेगी। मालेगांव आओ, अल्हम्दुलिल्लाह हर 2 महीने पर किसी न किसी मदरसे में खत्म बुखारी का जलसा मिलेगा। आप इलाके इलाके जाओ, आपको लड़कों के मदरसे मिलेंगे। मालेगांव में आओ, जहां आपको लड़कों के मदरसे मिलेंगे, वहां लड़कियों के मदरसे, आलिमात मिलेगी, मुअल्लिमात मिलेगी, तकियात मिलेगी, नकियात मिलेगी, ज़कियात मिलेगी। मैंने मुफ्ती हफीज साहब को बहुत खुश करवाया और वो बहुत खुश है माशाल्लाह मालेगांव आकर। और यहाँ आकर जब आज़ाद अनवर आपको सुना तो मुफ्ती हफीज मुझे यूँ हाथ मार कर कहते हैं ऐसा पूरे इंग्लैंड में नमूना मिलता नहीं है। मैंने कहा ले जाओ उठा के, हम तो देने को तैयार है, ले जाओ जितने। हाँ, हमारे यहाँ तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो जिसको ले जाना हो ले जाओ। मैंने एक मरतबा एक ज़माने में मैं शेर वेर जानता बनता नहीं, लेकिन एक ज़माने में मैंने कुछ बनाया था, बीवी से डरने वालों की कमी नहीं अहमद। मैंने अहमद अली माना आपको पसंद आवे तो ले लेना, तो वापस मेरे को दे देना। बीवी से डरने वालों की कमी नहीं अहमद, बगैर ढूंढे बेशुमार मिलते हैं, जितने चाहो मालेगांव से उठा लो, तरह तरह के उधार मिलते हैं। आज़ाद अनवर ओवरटेक। अल्लाह आप सबको बहुत अच्छा रखे। खैर मैं फिर एक मरतबा फेज वेलफेयर एड के तमाम जिम्मेदारों का, तमाम मुताल्लिकीन का, तमाम मुताल्लिकात का, तमाम माओं का, तमाम बहनों का, तमाम बेटियों का, हमारे भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही का, और इसी तरीके से हज़रत मौलाना शुएब पटेल का, और हमारे मुफ्ती आफीफ साहब का, और भी मेरे पास एक लिस्ट है। और वाक़ईतन इन लोगों का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब जो बहुत ही यहाँ मेहनत करने वाले, जैसे हमारे बेटे हारिस ने सब कुछ बता दिया, मौलाना अब्दुल क़य्यूम का, इसी तरीके से मौलाना अब्दुल रहमान साहब जो बहुत ही जवान माशाअल्लाह और मुतहर्रिक और फ़ाल। मौलाना अब्दुल रहमान साहब आपकी एक ही बीवी है? हाँ? 3 है? एक ही है? मिस्कीन 1000 हो गए। कुछ तो आगे बढ़े, आप बढ़ेंगे हम बढ़ेंगे। इसी तरह मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मेरे बेटे हारिस शेखानी का, जिन्होंने सुबह दरवाजा जल्दी नहीं खोला अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हाजी फराज, कहाँ है फराज भाई, तू दुबला कैसे हो गया? पहले मैं आता था इतनी जगह चाहती थी, अब इतनी जगह है, लेकिन बेटा वही अच्छा था। वो अंधेरे ही भले थे, कदम राह पड़ते, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तुझे। तो हाजी फराज साहब का भी बहुत शुक्रिया, मुफ्ती मोहम्मद हसनैन नौमानी साहब का शुक्रिया, मुबारकुल्लाह साहब का शुक्रिया, हमारे बेटे मुफ्ती आफीफ जो हमारे सदर मोहतरम और खुसूसी मेहमान, उनका शुक्रिया। हाजी जुनेद ओरा वाला, ये 30 साल से मेरे साथ में, देख लो भाई ये शक्ल देखो, बहुत देखने जैसी शक्ल है। ये हाजी जुनेद ओरा वाला 30 साल से, मौना दुआ करो अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इस अल्लाह के वली को मैंने देखा, ये टर्की गया हुआ, टर्की के बाद फिर ये वहाँ से उम्रे में गया। जैसे उम्रे से यहाँ हमारे सूरत में पहुँचा, कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, ये सूरत में आए, इन्होंने अपने घर में बैग रखा और इनको पता चला कि सूरत का जो गरीब इलाका है, मीठी खाड़ी, सुभाष नगर, आज़ाद नगर, लिम्बायत, वहाँ पानी भर गया है और रात भर लोगों को दूध नहीं मिला, खाना नहीं मिला। इन्होंने अपना बैग रखा अल्लाह की कसम और सीधे वहाँ पर दौड़े, यानी कपड़े भी नहीं बदले, और बराबर 48 घंटे तक
नमाजों के वक्त नमाज पढ़े, बाकी ये काम करते रहे, मालूम नहीं क्या खाया क्या पिया। दुआ करें अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। लेकिन इनके अंदर एक खराबी है, ये पहले जब जवान था, पूछो हारिस को भी, बहुत सीधा था। ये जैसे जैसे बूढ़ा होता है ना, हम बुढ़ापे में कमजोरी में आते, ये वापस रिवर्स होता है। पूछो मुफ्ती आफिफ को, पूरे रास्ते इनका टॉपिक क्या था? पूरे रास्ते इनका टॉपिक था, मैं शादी करूं, दूसरी करूं, तीसरी करूं। मैंने कहा हिम्मत हो तो आगे बढ़ो। अब गया वो जमाना, गया भाई हाजी जुनेद भाई। अब सीधा सीधा हूर का इंतजार करो, हूर का इंतजार। इसी तरह मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हमारे नंदुरबार से आने वाले मेहमान, देखिए ये बैठे हुए मौलाना जावेद नंदुरबार साहब, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। इनके साथ मेरे बहुत प्यारे भाई हारून भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उनके अब्बा फारूक भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे नंदुरबार के बहुत बड़े मास्टर यूसुफ साहब तशरीफ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे बेटे आजाद अनवर का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और मेरे साथ आए हुए मौलाना नौमान साहब और बेटे शाहनवाज साहब और बेटे इमरान साहब, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और ये हमारे सामने जो बैठा हुआ है एजाज, ये हमारे सूरत के कैमरा वाले हैं, इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला सबके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। और बेटे हारिस ने जिस अंदाज में शुक्रिया अदा किया, मैं समझता हूं उसके बाद कोई शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। जो दर्द दिल के साथ हमारे बेटे हारिस ने पूरे मालेगांव का, मैं बस कहता हूं उन्हीं की तायद कर रहा हूं और पूरे मालेगांव का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला सबके जान, माल, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। क्योंकि ऐसा मौका होता है, मुख्तसर बयान करना होता है, फिर कभी इंशाल्लाह बारिश का मौसम मुकम्मल होगा। मैंने मालेगांव वालों से 2-3 वादे किए हैं, रात के वक्त आएंगे, रात का प्रोग्राम होगा। दुआ करें, मैं भी हार्ट का मरीज हो गया हूँ, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी शिफा कामिला हाजिर अता फरमाए। एक बहुत ज़रूरी ऐलान है, उसके बाद हम दुआ करेंगे। यहाँ बाहर भी पोस्टर लगा हुआ है, और एक मस्जिद माशाअल्लाह, मस्जिद अब्दुल्ला बिन मसऊद, मस्जिद अब्दुल्ला बिन मसऊद, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मालेगांव की जो आबादी है, जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है, अप्रोक्सीमेटली 8-9 लाख मुसलमानों की आबादी होगी। इसलिए ज़ाहिरी बात है, महल्ले महल्ले मकतब की ज़रूरत, महल्ले महल्ले मस्जिद की ज़रूरत, महल्ले महल्ले मदरसतुल बनात की ज़रूरत। ये बिल्कुल सही समझ में आने वाली बात है कि जहाँ 8-9 लाख की आबादी हो, वहाँ बच्चों का तालीम, एजुकेशन, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, इसी तरीके से डॉक्टर, लॉयर, बैरिस्टर, वकील, सबकी ज़रूरत है मेरे प्यारों। तो अब एक मस्जिद माशाअल्लाह पहले से बनी हुई है, मस्जिद अब्दुल्ला इब्न मसऊद, लेकिन चूंकि मुसल्लियान बढ़ते गए, जगह कम होती गई, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 2,75,00,000 का प्रोजेक्ट है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही का एहसान है, 75 लाख का कलेक्शन हो चुका है, 2 करोड़ का कलेक्शन बाकी है और कुछ ही मुद्दत बाकी है। मैंने मेरे मालेगांव वालों, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अरे मेरे प्यारों, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा दरिया शबद, हर एक अपनी हैसियत के मुताबिक आगे बढ़ेगा। अच्छा फ़ायदा क्या मिलेगा भाई? हमने अल्लाह का घर बनाया, फ़ायदा क्या मिलेगा? हमारे नबी ने फरमाया, मम बना लिल्लाहि बैता बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। हमारे नबी का वादा पक्का है, ए मेरा उम्मती, ए मेरा उम्मती, एक अल्लाह का घर बना ले। अरे पूरा घर न बना सके तो जितना बना सकता बना ले। फरमाया अल्लाह जन्नत में तेरा महल बनाएगा, यकीनन अल्लाह हमारा जन्नत में महल बनाएगा। तो मेरे प्यारों, मैं आप तमाम से अपील करूंगा कि मस्जिद अब्दुल्ला इब्न मसूद के लिए आप बिल्कुल जितना हो सके लिल्लाह ताउन करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।